Okay, let's make a start. So, quickly, yeah, welcome to Let's Talk Parenting from Inspired Parenting, and we've been discussing on this topic how rewards have been distraction. Rewards are basically nothing but distractions, and so the same discussion taking forward, um, where even punishment is a distraction, and we'll look at that as a distraction aspect. So when we say distraction, it actually means that by giving rewards and we are giving punishment, we are actually trying to achieve something. We think that this is going to get achieved, okay, and we start seeing some result out of it, but in long run, truly, it's not really taking us there. It's a temporary distraction that it shows that okay, that things are working, but in long run, basically, that doesn't work, or it actually starts creating opposite results. And so we saw that how that happens, during the rewards, when we reward children. So similarly, let's have a look at what happens when we punish a child. Yeah. So that's what we've been discussing so far. Okay. So coming to our discussion, typically this is what we do. How we punish our children. Okay. Um, we generally these practices are not there anymore. I would like to think so, but there could be physical harm. Yeah. It could be, if not, I mean, if you are more aware parent, then at times you may end up insulting a child. You name them, you label them. You're such a dirty child, okay, when they have made a mess. So that's one of the way, you punish them, okay. um, this is, I would say, happens more common, and that's lecturing and shouting, okay. And remember, I mean, when typically, a parent would like to think that when they're telling children that this is how it's supposed to be, this is not how it's supposed to be, and suddenly it actually lecturing. Okay, for a child, if you need to put yourself in the child's perspective, when you start teaching them anything, okay, and if We it is need more coding there. okay, just a second, I'll put everyone on mute. So whatever you're trying to convey, if that's not going to be completed in one or two statement, okay, you would typically see a child switching off to whatever you're trying to say, okay. The smaller the child, it has to be short, okay, it has to be a single statement, or a question, or something that would uh, make child think and decide for herself. But otherwise it starts getting into lecturing. So I was just trying to see, tell you about lecturing, okay. They cannot withstand lecturing, they cannot withstand long. So lecture means what, with basically 45 minutes, or it's a long list of things you should do or you should not do, okay. And so typically what happens is parent, they hold, and finally it comes out as a blast. They uh, children did something, but they are holding on, they would ignore it, they will wait, they will not tell the child immediately, they are busy maybe, and at the end of the day the whole thing comes out. You did that, you did that, then I was watching you, you were doing this, okay. And it all comes out as a one lecture to them, okay, with shouting, or maybe you're telling number of things to them. So that also, it comes out as a punishment. So punishment, okay, or some may call it a consequence,
Yeah, uh, if it is one of these things, then I would like to address them together. That's what I'm trying to say. The punishment or consequence. If you're doing any of these, that's what child is going to feel. Punishment. Now, also a lot of times, children. This is typically Western has this practice that go in your naughty corner. Okay, where basically you isolate a child, you go make them sit. Yeah, sit quietly at one place. Okay, so that's also punishment. Okay, I'm not saying any of these is good or bad. We'll analyze, we'll see what happens when this thing happens. That's it's a discussion point basically. I don't want to say something is good or bad. I would like you to decide by you understanding and experimenting and working with it. Okay, so then there's a silent treatment. Lot of times, um, when a child does a naughty thing and you don't like it, uh, you don't talk to the child for a while, and that's kind of a punishment to a child. You're kind of doing an emotional blackmail, taking a mother away or a parent away from a child by not talking to the child, and that's uh, a form of a punishment. Yeah. Then uh, no performance, no gift. Okay, so so no gift again. It kind of becomes a punishment. Yeah. So no, you not finished your food, no dessert. Okay, no TV time, no homework, then no TV time. So that's a form of a punishment. Okay, and the list can go on. I don't know, you would like to add something, anybody would like to add something, or you have a doubt whether this is a punishment or not, um, or a consequence or not, you might want to ask now. Yeah, any other form of punishment you can think of? Okay. So I think uh, that's quite clear. Yeah, that we use these things as a punishments. Okay, so my question, the big question here is, when we punish a child or give a consequence, what are we trying to achieve? Yeah, I would like to have some interaction here now, that what are we trying to achieve when we punish a child? Yeah, Vishal. Maybe some discipline, yeah, some discipline from them, Okay, so you are saying that you or would, disciplinary behavior. yeah. So discipline is something, you tell a child a rule. Yeah, this is the rule, and child will understand why punish. That's the question. Why punish? Uh, I think Maybe he we is will. not, or he or she is not listening. So that's why we try to. I mean that is the end option what we choose. If the child is not listening enough, even if it is enough. Right. So again, basically, what you're saying is that you've been explaining child number of times, and finally, what happens is child, because it has not happened over a period of time. That's the end option. You think that at least this will make the child remember this. Yeah, we will try to say them that do not do it again, otherwise I will punish you in such manner. Maybe physical harm, or maybe shouting or something.
we will like to convey that don't do this thing so that thing again. Correct. Maybe. Correct. Yeah. So basically, that's the objective, that we would we have explained something to them so many times, uh, but then we think that punishment will make them remember to do something or not to do something. Okay. Any other reason? Yeah. So I think that's fair enough, that we have tried enough, and we think that at least when a child receives a punishment, the child will remember what to do or not to do. And I would say, if I correct me if I'm wrong. Yeah, Shweta, you want to say something? Yeah, sir. Actually, our upbringing is also doing like this. If that's we was that's doing true. something wrong, our True. parents shouted and that's why we are doing like this. We don't know the new method of how to punish them. You Correct, know correct. So that's the whole what I'm point. trying to Yeah, say? yeah, yeah. We That were we trying to don't know. Yeah. exactly. No, no, Yeah, we I have to find completely out the agree. new way of punishment. Yeah, new way of Yeah. punishment. Our Okay, parents also that is shouted at us. interesting. That's Our, interesting. Yeah, our yeah. parents also See, slapped sometimes. So our we parents, don't know. our first parenting teachers, I would say. Yeah. So whatever we learned about parenting, and it's all coming from how we were parented. So I agree. So lot of conditioning has gone into us in terms of the way we parent. Um, and yes, basically these are the methods we know. Yeah, and this is the whole point. Okay, uh, the whole point that we are here is to get more clarity about, more clarity about what we do and what is the consequence of what we do. Okay, so I would again keep refraining from saying that I would want to say that this is right or this is wrong. And I would say, whatever I say, you might want to question and see if that's right, or at least I'm trying to give you my side of clarity. I would like to have some your side of clarity, so that we all grow together in terms of understanding what actions we take and what are their consequences. So that's the whole point here of this discussion. Okay, and that's again, we would like to see what happens when a child is punished. Okay, so that's an action, and what is the consequence of it. Okay, and I will tell you the short term consequence. Yeah, the short term consequence is, you would see child obeying, you would see child following what you're saying. Okay, they will do what you're saying, they will stop masti, they will um, so that does happen. Yeah. Oh, suddenly I realize I've been talking in English all this while, so I'll continue in English, unless we have a request that I have to continue in Hindi. Okay, so Yes, sir. Prashant, ha, Kiran this side. yes. I'll be thankful if you continue in Hindi also. Use the Hindi language in between. हाँ ठीक है, तो पूरा पूरा कन्वर्सेशन हिंदी में करते हैं। तो अभी तक हम लोग ने जो बोला है कि बेसिकली हम लोग Yeah. बच्चों को जब पनिश करते हैं, ओके, तो Thanks. हम सोचते हैं, ओके, और ये बहुत बहुत कि बच्चा अपना लेसन सीखेगा। ओके, बच्चे को हम सबक सिखाना चाहते हैं कि बस मस्ती मत करो, यहाँ पे मस्ती मत करो, यहाँ पे गंदगी मत करो, ये हम एक सबक सिखाना चाहते हैं, और वो बच्चा फिर भी कर रहा है, तो हम उसको वो याद दिखा वो कैसे याद रखे, उसको सबक सिखाना चाहते हैं, और इसलिए हम उसको पनिश करते हैं। ओके, तो ये था हम क्यों बच्चों को पनिश करते हैं, वो तो रीजन था। लेकिन हो क्या रहा है, ये डिस्ट्रैक्शन क्यों है। हम लोगों ने शुरुआत में जो बोला था कि और या जो मेरा पॉइंट है यहाँ पे, कि एक्चुअली हो क्या रहा है कि बच्चा एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। अभी पनिशमेंट को लेके आप अगर रिसर्च करोगे इंटरनेट पे, तो आपको बहुत सारे डिसएडवांटेज
पता चलेंगे, और मैं उनके बारे में अभी बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत सारा डिस्कशन हम लोगों ने बहुत पहले कर चुका है। जैसे कि अगर बच्चे को आप पीटते हो तो बच्चा भी अग्रेसिव बिहेवियर दिखाना शुरू करता है, वो उल्टा जवाब देना शुरू करता है। आप उस पे चिल्लाते हो तो जब उसे मौका मिलता है तो वो भी आप पे चिल्लाएगा। वो सीख रहा है, वो बेसिकली क्या है कि आप जो कर रहे हो वो वैसे ही बिहेव करना वो भी सीख रहा है। ओके, तो या तो आप मतलब बहुत ज्यादा उसको ओवर पावर करते हो तो बच्चा मायूस होके ना बोलना बंद करता है। ओके, ज्यादा बोलना बंद कर देता है, आपसे बहुत कम बातें करेगा, सारी बातें नहीं बताएगा। तो ये सारे है इफेक्ट्स उसके, जिसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता। मैं डिस्ट्रैक्शन के बारे में बोलना चाहता हूँ कि हमने तो सोचा कि बच्चा ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, उसके तरफ क्या हो रहा है। ओके, हमने देखा उसको थोड़ा डांटा तो उसने हाथ नहीं लगाया एक नाजुक चीज को। लेट्स से एक क्रिस्टल बॉल है आपके पास और उससे वो खेल रहा था, आपने बोला और डांटा उसको तो वो अभी नहीं कर रहा। लेकिन वो क्या सोच रहा है अंदर ही अंदर, आप अगर नहीं रहोगे, ओके, और ये आप अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सोच के देखिए। बच्चा सोच रहा है कि अंदर ही अंदर के कल तो आप ऑफिस चले जाओगे तो यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, मम्मी किचन में बिजी रहेगी, उस वक्त मैं इसके साथ खेल सकता हूँ। ओके, या तो अभी ये तो एक सोच हो गया। फिर मतलब अगर वो ये सोच रहा है कि नेक्स्ट टाइम मैं इस तरीके से करूंगा यही चीज कि मैं पकड़ा नहीं जाऊं। हाँ, तो ये पहला पॉइंट है मेरा यहाँ पे। ओके, वो चीज उसके दिमाग से नहीं जाएगी, वो करना उसको जो रूट कॉज था हम लोग ने वो तो एड्रेस ही नहीं किया है। ओके, उसको सिर्फ ऊपर ही ऊपर हम लोग ने ढाक दिया है कि बस इसको करना नहीं है, तो वो डर गया है। लेकिन उसको जब भी मौका मिलेगा वो चीज करना चाहेगा। लेकिन इससे ज्यादा हार्मफुल जो चीज होती है ना, वो अभी मैं नेक्स्ट 3 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके बारे में बहुत कम बोला जाता है। ओके, बच्चा अंदर ही अंदर कैलकुलेट कर रहा है। देखो, आपने उसे डांटा था, अभी वो सोच रहा है ये खेलने से मुझे तो इतना मजा आ रहा है। ओके, और पापा क्या है, ज्यादा से ज्यादा 2 लफ्ज सुना देंगे, थोड़ा सा डांट देंगे, मैं डांट खा लूंगा। वो कैलकुलेट कर रहा है कि पनिशमेंट की वजह से उसका कितना नुकसान होता है और ये खेलने की वजह से या करने की वजह से उसे कितना मजा आता है। ओके, तो डांट खाने में क्या प्रॉब्लम है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ये मैं जब 3rd स्टैंडर्ड में था तो मैंने एक भी दिन होमवर्क किया नहीं और मुझे बहुत पनिशमेंट मिल चुकी थी, और इतना कि मुझे वो पनिशमेंट की आदत हो गई। और मैं कैलकुलेट करता था कि आज अगर मैं होमवर्क नहीं करूंगा तो मैं 2 घंटा खेल सकता हूं, मुझे इतना मजा आने वाला है खेलने में कि वो पनिशमेंट क्या है, मुझे 2 चाटे मिलेंगे। और उसकी तरफ मैं तो इनसेंसिटिव बन गया था, मतलब ये रोज का चाटा है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। ओके, तो ये मैं कैलकुलेट करता था। ये जो कैलकुलेशन है ना, ये बहुत डेंजरस होना चालू होता है अगर बच्चा ये कैलकुलेट करना शुरू करे तो। ओके, और इसके तरफ फिर टिपिकली क्या होता है कि अपने पास एक ही चारा होता है कि उसको डोज बढ़ाते जाओ। डोज बढ़ाने से क्या होता है, ओके, बच्चा उस डोज को इम्यून होते जाएगा। मतलब जैसे कि मुझे 2 चाटे मिलते थे तो मैं 2 चाटों को इम्यून हो गया था, उसके लिए सेंसिटिविटी था ही नहीं, फिर सारे क्लास के सामने मुझे खड़ा होके पूरा दिन खड़ा होना पड़ता था। ओके, उसको भी मैं वो हो गया, इम्यून हो गया था। तो मतलब टीचर्स ने उनका डोज बढ़ाते गए, मुझे
वो उस दोस्त की आदत होती गई। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी चीज को हम लोग दोहराएंगे तो उसके तरफ हम इम्यून होना शुरू कर देते हैं कि हम लोग उस चीज से हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना है हमें कि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि पहले आपने उसको 2 बार डांटा, फिर आपको ज्यादा डांटना पड़ा, फिर ज्यादा डांटना पड़ा। ओके, और बच्चा हर वक्त कैलकुलेट कर रहा है, हाँ ठीक है, मैं मुझे एक्सेप्टेबल है क्या। ओके, और ये भी चीज काफी बार हम लोग इग्नोर करते हैं। मेरा थर्ड पॉइंट ये है कि हमने जैसे ही बच्चे को पनिशमेंट दिया, बच्चे के लिए वो केस क्लोज्ड है, बच्चे के लिए वो अकाउंट सेटल हो गया है। ओके, बच्चा सोचता है कि मुझे पनिशमेंट मिल गया, मतलब मैंने जो किया था वो सब खत्म हो गया, अभी अभी इसके बारे में किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने तो पनिशमेंट ले लिया ना, अभी अभी क्या, अभी नए से शुरुआत करो। ओके, तो बच्चा उस चीज के बारे में सोच ही नहीं रहा है। ओके, क्योंकि उसको अगर पनिशमेंट मिला तो ठीक है, मैंने आपने 2 चांटा लगाया, आप मैंने ये किया था, अभी अभी केस क्लोज, अभी मैं फिर से कुछ करने के लिए तैयार हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हो क्या रहा है, केस क्लोज हो रहा है बच्चे की तरफ से। ओके, जबकि हम तो काउंट करते जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मेरा लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, ओके, कि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होते जाता है। ये दोनों में आप देखेंगे, रिवॉर्ड्स के बारे में हम लोग बात करें या पनिशमेंट के बारे में हम लोग अगर बात करें तो ये दोनों भी चीजें बच्चों को सेल्फ सेंटर बनाते हैं। अभी हम लोग पनिशमेंट की बात करते हैं कि बच्चा सोच रहा है कि अरे नहीं, ये इसको हाथ नहीं लगाना है क्योंकि ये हाथ लगाने से मुझे दर्द होने वाला है, मॉम डांटेगी या डैड पीटेंगे, इसलिए मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। सोचिए, अगर ये कारण है बच्चे का उस चीज को नहीं हाथ लगाना, तो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया है। बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, मतलब अपने आप को बचाने के लिए मैं दूसरे बच्चे को इसलिए नहीं पीटूंगा क्योंकि वरना मुझे रस्टिकेट किया जाएगा स्कूल से। वो ये नहीं सोच रहा कि पीटना सही है या गलत है, इस चीज को हाथ लगाना क्यों लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए। वो एजुकेट नहीं हो रहा, फ्री नहीं हो रहा डिसीजन लेने के लिए। इस पे हमें गौर करना बहुत जरूरी है। ओके, वो सेल्फ सेंटर्ड है, मुझे इससे नुकसान होगा तो मैं ये नहीं करूंगा। अगर उसने फॉलो कर भी दिया रूल तो वो बहुत गलत रीजन होगा बच्चे को वो रूल फॉलो करने के लिए। रिवॉर्ड्स में भी यही होता है, बच्चा सोचने लगता है इसमें मेरा क्या फायदा है। ओके, जो उसमें मजा आ रहा था वो अभी पीछे रह गया है। ओके, रिवॉर्ड्स आने शुरू हो गए तो अभी बच्चा सेल्फ सेंटर्ड हो रहा है। और वो बच्चा सोचता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है, अगर मेरा फायदा है तो मैं करूंगा, नहीं फायदा है तो क्या मजा है इसमें करने में, रूल्स फॉलो क्यों करना है, अरे मुझे दर्द होने वाला है इसलिए रूल्स फॉलो करना जरूरी है। राइट, सो दिस इज व्हाई इट इज एक्चुअली अ डिस्ट्रैक्शन। ओके, तो हम लोग क्या अचीव करना चाहते थे ये हमें ध्यान देना है। ओके, और ये सारे तरीके बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और हमने देखा भी है। और प्रॉब्लम यही होता है कि कोई भी चीज हमें इमीडिएट रिजल्ट अगर देती है ना तो हमारा ब्रेन उसको पकड़ लेता है कि अरे यार ये तो रिजल्ट देता है, ओके, इससे तो काम बनता है, तो वो इमीडिएटली वही तरीका आजमाना शुरू कर देता है बार बार। तो इसलिए उसकी आदत बहुत जल्दी हो जाती है हम लोग को, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की आदत हम लोग को बहुत जल्दी हो जाती है। ओके, एनी क्वेश्चंस? मैं इनवाइट करना चाहूंगा
हाँ ये टॉपिक से रिलेटेड मुझे पूछना था मैं रूपाली कि हाँ अगर पनिश नहीं करेंगे और हम उसको समझाएंगे लड़के को, फिर हाँ भी अगर नहीं समझे तो फिर क्या कर सकते हैं उसमें? हम ओके लोग चाहते हैं कि हम पनिश ना करें और हम ट्राई करते हैं कि हम नहीं करेंगे, तो भी करेक्ट बहुत एक्सट्रीम जब हो जाता है, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, लाइक व्हाट शुड वी फॉलो, व्हाट शुड बी द अप्रोच? yes आई या हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ओके ओके हाँ ओके तो हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करें और मैं चाहूंगा कि हम लोग सब मिलके डिस्कस करें इसके बारे में। ओके मैं भी अपने आइडियाज दूंगा। तो और हम लोग ने अभी तक जो डिस्कस किया है उसके बारे में कुछ सवाल? नहीं, आई थिंक आई एग्री विद मोस्ट ऑफ इट. ओके I'll just do a time check, give me a second. Okay, so I think we have 5-10 minutes. Okay, so let's take up that unless we have questions. और क्या होने वाला है ना कि ये डिस्कशन को थोड़ा वक्त देना बहुत जरूरी है और मैं चाहूंगा कि ठीक है मैं डिस्कशन शुरू कर देता हूँ। ओके और अगर हम लोग पूरा नहीं कर पाए तो वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन नेक्स्ट वीक। हम लोग नेक्स्ट वीक इसको फिर से कंटिन्यू रखेंगे। तो ओके बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि बच्चा अपना लेसन कैसे सीखे। ओके अभी इसमें मैं एक सवाल पूछता हूं। हम लोग काफी बार ये वर्ड यूज करते हैं पनिशमेंट, ओके और काफी बार यूज करते हैं कॉन्सिक्वेंस। ये नए जमाने का पनिशमेंट देने का स्टाइल है। मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत है। उस वर्ड का मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड क्या है पनिशमेंट, क्या है और कॉन्सिक्वेंस क्या है। कोई बताएगा? मतलब ये मैं चाहूंगा आपके अंडरस्टैंडिंग इसकी तरफ। पनिशमेंट क्या होता है और कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? एनीबॉडी? Yes. Punishment is something which you think that the child does not want, he dislikes that, and you look at it as an way to tell the child that you are wrong, and you have to take the what do you call consequence due to that. Okay, punishment is a way in which you want to tell the child what is wrong. Okay. So basically, punishment is an action, or a consequence is, basically a result from that action what we get. Okay. Okay. हाँ आप कोई अगर एग्जांपल देना चाहे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ पनिशमेंट एक्शन है और कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट है। करेक्ट, इट्स अ राइट डायरेक्शन आई वुड से। आप जो बोल रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में है, लेकिन थोड़ा और क्लैरिटी लोग ताकि लोगों को थोड़ा समझे। ओके ओके तो now we have 10 minutes. Okay, so we will complete this discussion about punishment and consequence in this 10 minutes. Okay, and then I'll tell you in 5 minutes, and then we can have question and answer if there are any, and then we'll continue this discussion next time. तो मैं एक एग्जांपल दूंगा कि कहाँ पे एक चीज पनिशमेंट होती है और कॉन्सिक्वेंस होती है। ओके तो जैसे कि एक बच्चा टेबल पे बैठा था, आप बोल रहे हो उसको वहां से मत बैठो, वो बहुत ऊपर है, वो लूज है, गिर सकते हो, वो हिल रही है चीज, आप उसके ऊपर बैठोगे गिर सकते हो। आपने उसे एक बार समझाया। ओके
बच्चा तो एडवेंचरस होता है, उसको तो सीखना है इसका मतलब क्या होता है, कि वहां से कैसे गिर सकते हैं, ये भी उसके दिमाग में चल रहा है। तो वो चढ़ गया फिर से आपने उसे बोला, ओके, वो डर गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर से आप नहीं थे तो ऊपर चढ़ के बैठ गया और बच्चा नीचे गिर गया। ओके, बच्चा गिर गया, उसे लग गया, हाँ, उसके हाथ में चोट आ गई। तो ये जो उसे चोट लगी है, ये तो कॉन्सिक्वेंस है, मतलब उसने जो किया उसका रिजल्ट उसे मिला। ओके, तो कॉन्सिक्वेंस तो मिल गया बच्चे को। तो ये जैसे आपने बोला था कि वो रिजल्ट है, उसने कुछ किया, उसका रिजल्ट उसको मिलने वाला है। ओके, ये उसका कॉन्सिक्वेंस है। अभी आप आ गए और आपने उसे बोला, मैंने 10 बार समझाया, तुम समझते नहीं हो। ओके, सडनली ये जो कॉन्सिक्वेंस था, बच्चा समझ गया था कि हाँ, मैं ऊपर से गिरूंगा तो मुझे, ऊपर अगर चढ़ता हूं तो मुझे ये कॉन्सिक्वेंस मिलने वाला है। ओके, तो सडनली वो कॉन्सिक्वेंस अभी बच्चे को पनिशमेंट लगने लगा है। बच्चे को लगता है कि उसको लगने से आपको अच्छा लग रहा है, और वो आप बोल भी रहे हो सामने से, मैंने बोला था। ओके, बच्चे को ये लग रहा है कि उसको दर्द होने से आपको अच्छा लगता है। और मैं अभी ये जो कॉन्सिक्वेंस और पनिशमेंट है ना, ये बच्चे के एंगल से बात कर रहा हूं। ओके, क्योंकि बच्चे को क्या लगता है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि रियलिटी इंपॉर्टेंट है। ओके, फाइनली क्या होता है कि हर एक चीज अपने पर्सपेक्टिव में देखी जाती है, हम लोग अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। तो बच्चे का दृष्टिकोण समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसे क्या पनिशमेंट लग रहा है और क्या कॉन्सिक्वेंस लग रहा है। ओके, तो उस तो ये एक चीज है, उसको कुछ कॉन्सिक्वेंस मिला। लेकिन जैसे ही आपने बोला कि मैंने तो बोला था, हाँ, तो आप क्या बोल रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या बच्चे को क्या लग रहा है आपके फीलिंग्स के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि बच्चा डिसाइड कर सके कि ये कॉन्सिक्वेंस है या पनिशमेंट है। जैसे ही उसे लगा ये पनिशमेंट है ना, तो बच्चे ने अभी चैलेंज ले लिया है। बच्चा ये सोच रहा है नेक्स्ट टाइम मैं चढ़ूंगा और नहीं गिरूंगा, ये मैं करके दिखाता हूं आपको। जबकि वो सीख गया था कि हाँ बाबा, इसको करने का है ना, तो इसको थोड़ा संभल के करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अभी तो वो प्रूव करने के लिए चढ़ेगा बस। ओके, तो ये होता है कि उसे क्या लग रहा है, पनिशमेंट है या कॉन्सिक्वेंस है। हाँ, इसको और थोड़ा समझते हैं। बच्चे ने दूध गिरा दिया। ओके, होते रहता है, सबसे होता है, बच्चों से ज्यादा होता है, उनके थोड़े मोटर स्किल्स वीक होते हैं, या थोड़ा मस्ती भी करते हैं। मतलब वो डिनर टेबल पे बैठेंगे तो शांति से बैठेंगे नहीं, वो करेंगे कुछ तो कुछ, जिसकी वजह से अभी दूध गिर गया है। ओके, दूध गिरने पे अभी चॉइस है हमारे पास, उनको डांटे। जब डांटेंगे तो बच्चे को क्या लगेगा, अगर बच्चे को हम डांटेंगे तो बच्चे को क्या लगेगा, बच्चे को पनिशमेंट लगेगा, क्योंकि वो सोच रहा है कि आप जानबूझ के उसे दुखा रहे हो। लेकिन अगर बच्चे ने गंदगी की है तो उसे साफ करने को कहा जाए, तो वो क्या होगा, वो कॉन्सिक्वेंस है। तो बच्चा ये सीख रहा है यहाँ पे। और हमारी जो लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को बच्चे से कनेक्ट होना है और बताना है, अरे मैंने दूध गिराया तो मैं दूध साफ करूंगा।
नॉर्मली क्या होता है कि ये बच्चा जब बड़ा होता है तो मम्मी कर देती है, ओके। बच्चा छोटा होता है, कर नहीं सकता, ये सोच के मम्मीज क्लीनिंग का काम करती रहती है और ये फिर आदत बन जाती है बच्चे को भी मम्मी को भी। जबकि हमें करना है कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसे सही करने का कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, ये सबके साथ होना चाहिए। हम लोग भी कुछ गलत करते हैं तो उसे सही करना जरूरी होता है। हाँ, तो बच्चा अगर साफ करता है तो उसे पनिशमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम उसके साथ कैसे बर्ताव कर रहे हैं जब ये कर रहा है। अगर हम उसे दिखाते हैं कि उसको मतलब अगर वो देख रहा है कि हमें मजा आ रहा है उसको तकलीफ में देख के, तो उसे वो पनिशमेंट लगेगा। तो पनिशमेंट जो है ना, ये बहुत ही एम्पैथेटिक होनी चाहिए, या कॉन्सिक्वेंस जो होता है, ओके। या हम बच्चा जिस तरीके से फील कर रहा है, ओके, उसको हमें भी फील करना बहुत जरूरी है। हमें समझना ये जरूरी है कि हाँ, कि आई अंडरस्टैंड कि ये करने में मजा नहीं आ रहा, आई अंडरस्टैंड कि ये करने से तुम्हारा हाथ दुख रहा है, ओके। अगर बच्चा समझ सकता है कि उसकी तकलीफ आप समझ रहे हो, तो बच्चे को नहीं लगेगा कि आप कॉन्सिक्वेंस में, ओ आई अंडरस्टैंड, ऊपर से गिरा था, बहुत जोर का लगा होगा, मैं भी गिरा था, मुझे भी जोर हुआ था, देखो मेरे पास अभी भी निशान है, ओके। इस तरीके से अगर बोल रहे हो तो बच्चा समझ रहा है कि आप उसके साइड में हो। बच्चे को ये हमेशा फील होना जरूरी है कि आप उसके साइड में हो। तो वो जब कॉन्सिक्वेंस के थ्रू जा रहा है, अगर आप उसके साइड में हो तो बच्चे को वो कॉन्सिक्वेंस लगेगा, या आप ऑपोजिट साइड में हो तो उसे वो पनिशमेंट लगेगा। तो आई थिंक लास्ट 1 मिनट बचा है। मैं चाहूंगा इस पे बहुत सारे सवाल आए, ग्रुप में। आप अगर ग्रुप में नहीं हो तो मैं चाहूंगा कि आप आपका नाम और नंबर यहाँ पे चैट विंडो में लिखे, और फिर मैं आपको वो ग्रुप्स में, हमारे पेरेंटिंग के ग्रुप है उसमें ऐड करूंगा, जहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूंगा क्वेश्चंस के बारे में। एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू दिस डिस्कशन आगे से। नेक्स्ट कॉल में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और वी विल हैव, हम लोग, मैं चाहूंगा आप सिनारियोज लेके आए और उस सिनारियो के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे ना, तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और ये छोटा टॉपिक नहीं है, क्योंकि मस्ती बहुत तरीके की होती है और हर एक तरीके में हमारा अप्रोच, मतलब हर तरीके में हमारा अप्रोच सेम नहीं होना चाहिए। ये मेरा हमेशा कहना रहता है कि हमारा अप्रोच बदलते रहना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, किस तरीके का सिचुएशन है। और तो ये जानेंगे इसके बारे में। और एंड सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आप शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने के लिए। आपका नंबर और नाम लिखिए चैट विंडो में, हम लोग ग्रुप में डिस्कस करेंगे, या ग्रुप में आपके सवाल भेजिए मुझे।